Hello friends, using this video we are just going to describe tense in details. You know very well the meaning of tense, that is known as kaal in Hindi, and the meaning of kaal is time, that is samay. Three types of time is there: past, present and future. So now according to the time we have three types of tense known as present tense, past tense and future tense. In present tense, we will discuss about the current situations which we are living or facing. In past tense, we will discuss those times which we have left behind. That means yesterday and the previous days. In future days, we will discuss about those things which we will do by the day after today. It means tomorrow and the further days. These are known as kinds of or the types of tense. Now it is introduced that each tense has four parts. Those are known as simple or indefinite, continuous or progressive, perfect and perfect continuous. Now what are the meaning of these kinds? As we will go further and discuss the tense, you will get details about these things, that what are the meanings of these four kinds of tenses. Here we will also learn about various parts of present simple tense, which are present simple tense, negative form of the tense, interrogative form of this tense and negative interrogative form of present simple tense. In these various tense, you will learn how we can change the sentence according to the situation. So, in further, you will get the rules and examples with the related tenses. Now here we are starting present tense, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल. तो दिस टेंस टेल अस अबाउट द इवेंट्स हैपनिंग इन प्रेजेंट टाइम्स. अभी हमारे आसपास क्या हो रहा है, क्या घटनाएं घट रही हैं, उन घटनाओं का जब हम एक साथ देखते हैं या वर्णन करते हैं तो उसे हम प्रेजेंट टेंस की फॉर्म में लिखते हैं. सो वी आर प्रोसीडिंग फर्दर विद प्रेजेंट सिंपल टेंस. तो अगली स्लाइड्स में आप प्रेजेंट सिंपल टेंस से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, उनके रूल्स देखेंगे और ये समझेंगे कि इन टेंस को अगर लिखा जाए तो पहचानेंगे कैसे कि ये कौन सा टेंस है. साथ में आपको उनकी पहचान भी बताई जाएगी, सो दैट यू कैन लर्न दीज टेंसेज इन वेरी इजी वे. नाउ यू कैन सी हियर इट इज प्रेजेंट सिंपल टेंस. अब अगर कोई सेंटेंस लिखा जाए तो उसे हम पहचानेंगे कैसे. अगर हिंदी में लिखा है तो इस टेंस के अंत में ता है, ती है, ते है, हूं ऐसे शब्द आते हैं जिनसे हमें पहचान होती है कि ये लिखा हुआ सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस में है. आगे आप एग्जांपल्स में देखेंगे कि किस तरह से कोई सेंटेंस बनता है और उनके अंत में किस प्रकार से ये शब्द आते हैं जो प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान कराते हैं. इसका रूल होता है कंपोज करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है यानी कि क्रिया, उसके साथ एस या ई एस जुड़ जाते हैं और अंत में ऑब्जेक्ट यानी कि जो काम किया गया, कर्म, ये आते हैं. एस और ई एस का सिंगुलर के साथ ही यूज किया जाएगा, जैसे ही, शी, इट, राम, मोहन, इनके साथ एस या ई एस लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में. लेकिन कभी भी आई और यू के साथ एस और ई एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ नहीं जोड़े जाएंगे. These two are the exceptions. ये दो अपवाद हैं. Now we can understand these tenses with the help of some examples. अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि सिंपल टेंस कैसे लिखा जाता है. So now look here. A few examples are given to introduce simple present tense. You can easily understand the simple present tense here by going through these examples. पहला एग्जाम्पल देखिए, आप सिंपल सा लिखा है मदन पत्र लिखता है. तो इस सेंटेंस के अंत में ता है, जैसा कि मैंने आपको पहचान के लिए बताया था. अब अगर इसका कन्वर्जन करें अकॉर्डिंग टू रूल, मदन राइट्स लेटर. मदन इज द सब्जेक्ट,
write is the first form of verb. As mother is singular, we are using s after the verb, and letter is the object. Similarly, in the second sentence, Ram cricket खेलता है. Ram plays cricket. In third sentence, तुम बाजार जाते हो. You go to market. अब ध्यान से देखो थर्ड सेंटेंस को. गो के साथ एस या ईएस नहीं लगाया गया है और यहां यू लिखा है. और इसके बाद का सेंटेंस जो है, मैं फल खरीदता हूं, आई बाय फ्रूट्स, इसके साथ भी बाय के साथ एस या ईएस यूज नहीं किया गया है. जैसे कि आपको बताया गया था, यू एंड आई आर द एक्सेप्शंस. इनमें वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, इनके साथ कभी भी एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता. तो उसी के अकॉर्डिंग इन सेंटेंस को कंपोज किया गया है अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ ग्रामर. लास्ट सेंटेंस देखो, हम अंग्रेजी किताब पढ़ते हैं. वी रीड इंग्लिश बुक. तो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स. अगली स्लाइड में आप कुछ एग्जांपल्स और देखेंगे जिनसे आप क्लियरली समझ जाएंगे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस को कैसे लिखा जाता है. इस स्लाइड में देखिए, पहला एग्जांपल जो आपको दिया है, लिखा है आकाश में पक्षी उड़ते हैं. ठीक है ना. यहां अगर पक्षी वर्ड को देखें हम, तो इट इज लुकिंग लाइक अ सिंगुलर वर्ड. पक्षी सिंगुलर दिखता है, लेकिन अंत में क्या है? तो है पक्षी आकाश में उड़ते हैं, यानी कि एक से अधिक पक्षी है. अगर हम सेंटेंस लिखते पक्षी आकाश में उड़ता है या आकाश में पक्षी उड़ता है, तो हम मानते हैं इसको कि ये सिंगुलर. लेकिन उड़ते हैं आ चुका है, इट मीन्स now it is plural. There are more than one birds. So according to this condition, हमने सेंटेंस कंपोज किया, birds fly in the sky. birds plural है, इसलिए fly के साथ ses का यूज नहीं किया गया. इसी तरह से गाय खेत में घास चरती है. चरती है, उस पर कोई बिंदी नहीं है, यानी कि अकेली गाय है. और उधर अगर प्लूरल होता हम लिखते गायें, तो ये सिंगुलर होने के कारण सेंटेंस बना cow grazes grass in the field. नेक्स्ट सेंटेंस, राम और रहीम कमरा सजाते हैं. अब यहां देखिए, राम एंड रहीम, यहां दो पर्सन है. इसका कारण डेकोरेट यूज में लिया हमने, एस और एस यूज में नहीं लिया. क्यों? कि राम और रहीम ने मिलकर प्लूरल बना दिया. ये दो हो गए, एक से ज्यादा हो गए. दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग अ सेंटेंस, राम एंड रहीम डेकोरेट रूम. हिरण जंगल में दौड़ता है. डियर runs in forest. राधा खाना पकाती है. राधा cooks foods. So these are a few example of simple present tense. इन simple present tense के सेंटेंस को आप रिवाइज कीजिए, रिपीट कीजिए और खुद कुछ कंपोज कीजिए सेंटेंस, ताकि आप इस टेंस के अंदर परफेक्ट हो जाए. So friends, you have gone through the previous video and understood the method of using present simple tense very well. अच्छी तरह से आपने पिछले वीडियोस देखे हैं. उन वीडियोस में आपने पहचान देखी है, रूल्स देखे हैं, एग्जांपल्स देखे हैं. तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस को किस तरह से यूज में लिया जाता है या उसके सेंटेंस कैसे बनते हैं. आई होप नाउ इट इज क्लियर दैट हाउ एंड व्हेन एंड वेयर यू हैव टू यूज एस एंड ईएस. कब, कहां और कैसे आपको एस और ईएस का प्रयोग करना है. इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस नेगेटिव फॉर्म ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस. अगला वीडियो आपके लिए तैयार कर रहे हैं, जिसके अंदर आप जानेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव फॉर्म किस तरह से बनता है, उसके रूल्स क्या होते हैं और उसके सेंटेंस कंपोज कैसे किए जाते हैं. टिल देन जस्ट रिवाइज दिस टेंस फॉर्म एंड वेट फॉर अ नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.